आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द pressure tactics often used in the negotiation process. Please remember following key points. First of all, it's very common practice, especially during collective bargaining with the union, with the labor unions, that they come up with the large demands. What does it mean? Large demand means they ask for, okay, please increase our increment by 50%. Give us 5 bonuses instead of 1 bonus. Give us transport facility. Give us canteen facility. Give us free lunch, and so many things. So if you calculate the financial cost of the demand, it goes out of proportionate, and it's not possible for any company to give such demands in one go. So but the purpose of raising such demands is to put management under pressure. ये ऐसी ही बात है कि अगर आप कोई चीज़ जाएं लेने और कोई शख्स ये कहे कि ये 20 रुपए की चीज़ है और यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल प्राइस, देन आप कितना कम करेंगे? आप कहेंगे ठीक है 15 रुपये कर लें, यानी 50% रिडक्शन कर लें। लेकिन ये कि स्टिल इफ़ यू गॉट दैट देन यू आर पेइंग 50% एक्स्ट्रा टू द मार्केट प्राइस। तो ये कॉमन टेक्निक्स होती हैं, और समटाइम जो दूसरे लोगों से भी नेगोशिएशंस करते हैं तो दे कम अप विद सच हाई डिमांड्स। इसमें आपको सिर्फ ये एक तो ये कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर होमवर्क शुड बी रेडी, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, यू मस्ट नीड टू go through all the demands and calculate its financial impact and see what is possible and what is not possible, right? And then you have to come prepared and don't get pressure of such demands. So this is the first thing which often happen in the union negotiations, and as a smart manager you need to understand that these are the demands just for the sake of demands, and they understand okay, what actually they need to demand, and you should also understand that what need to be given, because when the demands are negotiated, तो you have to see कि पिछला ट्रेंड क्या था, कितना इनको हम पिछले सालों में देते रहे हैं इंक्रीज, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, और उसके हिसाब से फिर देन यू कम अप एंड टॉक टू देम। दूसरा जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं उनमें थ्रेट है। अब थ्रेट ऑफ व्हाट? थ्रेट मीन्स एक तो थ्रेट ये है कि नॉर्मली यूनियंस ये करती हैं कि अगर आपने डिमांड्स हमारी आपने नहीं मानी, विल गो फॉर स्ट्राइक, विल स्टॉप द कंपनी ऑपरेशंस। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट विच कैन बी गिवन टू द मैनेजमेंट। बट to get that threat, the management should also be aware, and you should also understand that the strike cannot be done so easily. There is a legal process which is there, and besides that the management also has power, legal provision when they can go for lockout. So अगर यूनियन आपको थ्रेट करती है कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, you can also counter it. We will also go for lockout, because if you will not agree, you will not behave in a proper manner, obviously you will have no option but to lock out. And in the case of lockout, obviously the workers lose a portion of their salaries, and it is not easy or possible for any union to sustain the pressure of lockout. So again, so you have to don't take these threats, and sometime the unions are normally motivated by, are supported by the political parties.
they have the external partners, they have federation, labor federations. So and they are representing a big group of workers. So obviously the leaders selected as a the union leaders are generally political people, maybe violent people, and they try to use and blackmail the management based on their social and political powers. So if you compare them with the managers, who are the decent people and working in the companies, the directors and others, so they are not neither politically motivated nor they are the people who can make nuisances. So ऐसे मौके पर मैनेजमेंट को आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर यूनियन किसी को इंडिविजुअल थ्रेट करती है टू प्रेशराइज हिम हर, समटाइम होता है यूनियन देखती है कि जो लोग शख्स उनके बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा उनको टफ टाइम दे रहा है, तो दे कम and try to threat them individually and on personal level. So all of you must understand that giving any threat to the individuals, professionals in the company is a misconduct, and the punishment of the misconduct is termination of employment. So rather than taking and acknowledging their threats, the management and the managers and the professionals should react and they should tell them that if you will behave like this, we'll get the support from the legal channel. That could be the law enforcement agencies, they could be putting the FIR in them, they may be going to the labor department, the court, because giving threats to during negotiation and otherwise as well is misconduct and also unfair labor practice which is punishable under law. ठीक है. दूसरी चीज़ ये होती है कि डेड लॉक्स आ जाते हैं. होता ये है कि जब आप नेगोशिएशन कर रहे होते हैं तो यूनियन कहती है भाई ठीक है आप हमारी डिमांड नहीं मानते, सॉरी वी विल नॉट, जस्ट दे वाइंड इट अप एंड गो अवे फ्रॉम द टेबल एंड दे से अगर नहीं करेंगे आप तो हम आपसे मज़ीद बात नहीं करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिस पर डेड लॉक हो जाता है. तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए. और डेडलॉक ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप उन्हीं के जो नुमाइंदे होते हैं उनको सेपरेटली बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको समझाते हैं और देन दे कम टू द टेबल. दूसरा डेडलॉक ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि यू इन्वॉल्व थर्ड पार्टी. देयर इज़ अ प्रोविजन इन द लॉ कि आप रिकॉन्सिलिएशन में चले जाते हैं. लेबर डिपार्टमेंट, यू कैन आस्क द लेबर डिपार्टमेंट टू इंटरवीन एंड द मीटिंग कैन बी हेल्ड इन द Labor Department, and there are also provision for arbitration and other things if the deadlock comes. But it's a usual practice. Unions generally ये कहती हैं आपको प्रेशर में डालने के, नहीं अब हम बात नहीं करेंगे, let it go by strike, and they keep on threatening. This is pressure tactic. You should not take it. And yes, it's a real deadlock. Then you can go and take the proper third party intervention which has the provisions in the law. Sometimes they give you surprises. अचानक आप बैठे हैं, अचानक सब लोग आ गए और उन्होंने शो मचाना शुरू कर दिया, या अचानक आ गए एक ऐसी बात कर दी कि मतलब आप परेशान हैं, आप मतलब मीटिंग हुई, वो आए, उन्होंने आने के बाद आके बैठे और सब ने मुंह बना लिए, सब ने they have demonstrated a very obnoxious behavior and this kind of thing just to put you under pressure. तो दूसरी sometimes what they do, they just create an environment and speaking loudly and these things and talking bullshits. So these are all the pressure tactics, and the management team should be calm, quiet and composed, and they should not react and respond to their such things. So if when you don't react and respond, I can remember I was with the company leading the negotiations, and in that company there was a practice कि जब वो नेगोशिएशन होते थे तो फेडरेशन के लीडर आते थे और वो
एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे, एक टेंशन क्रिएट करते थे। ऐसा लगता था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने जा रही है एंड बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट हो गई। व्हेन आई टुक ओवर द कंपनी मैनेजमेंट देयर द प्लांट, और जब नेगोशिएशन स्टार्ट किए अगेन द यूनियन फेडरेशन लीडर केम एंड दे स्टार्टेड, so I came out of my room, the conference room, and rather than going in the ego, I welcomed them, and I asked my team to just put some flowers on the table, give them tea, coffee, good refreshment. So that was a surprise for them, because they wanted to create an environment where they demonstrate to the workers that we are fighting for their rights. But what I did to counter that pressure tactic, I became so polite, so nice, so decent, welcoming, and I took it the federation leader as my guest. So again, when we repeated such behaviors again and again, they have no option but to behave. जब आप किसी कोई शख्स आता है उससे में आप उससे प्यार से बात करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको ये करते हैं, तो वो कोई भी शख्स उसको ज़्यादा देर तक वो पोज नहीं कर सकता, और वो जो उसकी प्रेशर टैक्टिक होती है वो डाई आउट हो जाती है। और फिर जब आप एक अच्छी इन्वायरमेंट बना लेते हैं तो इट्स ईजी फॉर, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है। दूसरा क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें जब आपके नेगोशिएशंस होते हैं तो ज़ाहिर मैनेजमेंट और वर्कर दोनों साइड पर नेगोशिएशन टीम्स होती हैं जिसमें 7-8 लोग हो सकते हैं। तो वो ये देखते हैं कि कौन से लोग हैं इसमें, मैनेजर्स हैं या कौन से मैनेजमेंट टीम के लोग हैं हु आर वेरी वोकल, हु आर गोइंग क्वाइट इन्फोर्सिंग, एंड वो उनको एक टफ टाइम दे रहे हैं दे, तो उसको फिर इसी तरह कुछ लोग होते हैं कंपनी में, बिकॉज वो वर्कर्स भी एम्प्लॉइज होते हैं, उनके साथ जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं, उनके साथ अपना उनके ताल्लुकात करते हैं। तो वो कहते हैं कि सर आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, प्लांट हेड को कहते हैं सर प्लांट आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप हमारा ख्याल करते हैं, ये जो HR हेड है ये इज़ ए नॉनसेंस, हम इसको देख लेंगे, आप तो सर बहुत अच्छे हैं, फला डायरेक्टर सर आप बहुत अच्छे हैं आप ये, और फिर भी उनको साइकोलॉजिकली ट्रैप करते हैं ताकि वो जो डायरेक्टर्स हैं उनकी उन्होंने तारीफ़ कर दी, दूसरे लोगों को गुस्सा कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो वो समझते हैं कि उनके साथ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उनको कहते हैं नहीं सर आप बहुत अच्छे हैं, हम आपकी नहीं तो जान भी दे सकते हैं, मगर ये HR हेड है इसको हम नहीं छोड़ेंगे फला फला, और इस तरह की बकवासियात करते हैं। तो उसमें यही होता है कि ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, ठीक है। और डिवाइड एंड रूल, अब उसमें क्या होता है कि जब वो ऑफिस के बाद जाते हैं, वो जो डायरेक्टर होता है उसकी राय सिंपैथी उनके पास हो जाती है, या वो ही वांट टू मेंटेन दैट लिंक, और उससे फिर वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मैनेजमेंट टीम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं और ये यूजुअल होती हैं हर जगह, ये उनके ट्रेडिशनल टैक्टिक्स हैं, तो इसमें आपको नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात दफ़ा ये होता है कोलिजन बना लेते हैं, मतलब वो यूनियन भी मिल गई, मैनेजमेंट और जो दूसरे जो पार्टीज़ हैं वो भी मिल गई, और सब ने मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर दिया, और उसके खिलाफ एंड दे वेज डिफरेंट इश्यूज़ कि भाई आप इसमें ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं, लीगली आप ये काम गलत कर रहे हैं, देन दे टेक अदर वर्कर्स एंड दी parties in the company together. Sometimes they make alliances with the federation and these political parties and invite them to interfere in these things. तो ये चीज़ें हो जाती हैं, हो सकती है, लेकिन उसमें मैनेजमेंट का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विल गो बाय लॉ एंड विल नेगोशिएट विद द पीपल हु आर लीगली परमिसिबल एंड दे शुड बियर दिस प्रेशर। उसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए, बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड दे कैन नॉट डू इट। कोई वर्कर्स, क्योंकि जो यूनियन होती है, जो वर्कर्स होते हैं, इवेंचुअली दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, और कंपनी के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई मिसबिहेव करता है, कोई डिसऑर्डरली बिहेव करता है, तो कंपनी हैज़ ऑल द राइट टू टर्मिनेट हिज सर्विसेज। तो अगर आप, मैंने ये देखा है कि अगर जब लोग इस तरह कोई वायलेंट होते हैं और कब मैनेजमेंट उस प्रेशर पे नहीं आती और उनके खिलाफ एक्शन ले लेती है, तो मैंने उन ऐसे लोगों को जो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो कि बहुत बड़े गुंडे बनते थे, उनको मैंने देखा है आंखों से रोते हुए
क्योंकि देखिए एक वर्कर की जो एक यूनियन लीडर होता है वो भी एक वर्कर होता है, और उस पर वो सारे लेबर लॉज अप्लाई होते हैं जो कि दूसरे लोगों पे होते हैं। तो अब अगर यूनियन लीडर, इसलिए यूनियन लीडर है वो बकवासियात कर रहा है, उसे पता है मुझे निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर वो करता है और लीगली आप उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, उसे टर्मिनेट कर देते हैं, तो फिर बात ये आ जाती है कि सर इसको आप बहाल कर दें और ये कर दें, और वो कोई भी शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाए। तो इसमें यही है कि मैनेजमेंट को वाइसली लेना चाहिए, इन प्रेशर टैक्टिक्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अपना जो काम है क्वाइटनेस नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि वो प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं आपको इरिटेट करने के लिए, आपको प्रोवोक करने के लिए, और जब आप प्रोवोक हो जाते हैं, जब आप उसी टोन में बात करने लगते हैं या आपको रेसिप्रोकेट करने लगते हैं, तो इसका मतलब है दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर नेगोशिएशन, इन देयर स्ट्रैटेजी टू प्रोवोक यू। तो उस ऐसे मौक़ों पर, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर वो वायलेंट हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, यू नो कि भाई ये सब बातें हैं, कर कुछ नहीं सकते, तो यू शुड लिसन टू देम, और अगर ज़्यादा करते हैं तो यू शुड टेल देम कि ओके दिस इज़ द लॉ, एंड उसमें भी अगर कुछ उनको सीरियसनेस नहीं आती तो यू कैन इशू द लेटर्स टू देम एंड